Now the next topic is geography as an integrating discipline. Geography as an integrating discipline has interfaced with numerous natural and social sciences. ज्योग्राफी जब इंटीग्रेट करता है तो बहुत सारे सोशल साइंसेज से कनेक्टेड है बच्चों. Geography not only takes note of the difference in the phenomena from place to place but integrates them holistically, which may be different at other places. Geography influences historical events. In traditional warfare, countries with large size and area gain time at the cost of space. Even in India, Himalayas have acted as a great barrier and provided protection, but the passes provide routes to the migrants and invaders from Central Asia. The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe, and Africa. If we are taking geography as integrating discipline, we are clearly knows that geography is related with others or integrated with others subjects very well. Geography as a discipline is a synthesis. It attempts spatial synthesis and the history of attempt temporal synthesis. And its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that our world is a system of interdependencies. आज हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हमारा जो संसार है वो इंटरडिपेंडेंसीज पर आधारित है. एक अकेला देश कभी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है, या एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता. उसे हर दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो वी आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग. वी आर हैविंग सम ऑफ द स्किल्स बट नॉट ऑल. हम कुछ स्किल्स तो अपने अंदर रखते हैं लेकिन हर तरह की स्किल्स नहीं हो सकती. एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाना, इलेक्ट्रॉनिक काम करना या सब चीज़ में निपुण नहीं हो सकता. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट टू वन अनदर. एंड जस्ट लाइक दैट, अर्थ इज हैविंग differentiative resources, but it is distributed not evenly. हमें नेचर ने सब कुछ दिया है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन पैटर्न पे नहीं किया है. कुछ देशों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कुछ के पास कम है. तो जो कम रिसोर्सेज वाले देश हैं हमेशा उनको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक. So, geography as an integrating discipline has interfaced with numerous natural and social sciences, and all the sciences, whether natural or social, have one basic objective for understanding the reality. क्या है ये basic objective? Geography attempts to comprehend the association of phenomena as related in section of reality. Shows the relationship of geography with other sciences. Every discipline concerned with scientific knowledge. हर discipline जो है geography का वो scientific knowledge से concern करता है and is linked with the geography as many of their elements vary over space. Even geography helps in understanding the real in totality in its spatial perspective. ज्योग्राफी हमें मदद करता है टोटलिटी के अकॉर्डिंग हम देखें, संपूर्णता के आधार पर हम देखें तो हमें रियलिटी समझने में मदद करता है, हमें डिफरेंसेस समझाने की कोशिश करता है. अ ज्योग्राफर इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. और ज्योग्राफर जो कि हमें ज्योग्राफी का नॉलेज देता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड होनी चाहिए ताकि वो हर रिलेटेड फील्ड्स को अच्छे से लॉजिकली इंटीग्रेट कर सके और इंटरप्रीट कर सके. हमारे इंडिया में जो हिमालय है, हिमालय अगर हम देखें तो एक नेचुरल ग्रेट बैरियर के तौर पर है, हमारी सुरक्षा करता है. पर वहीं दूसरी तरफ देखें तो इसके बीच के जो पासेस हैं इसने माइग्रेंट्स को इंडिया में आने का मौका भी दिया.
तो यहाँ दोनों बातें हो सकती हैं। अंडरस्टूड? So the every geographical phenomena undergoes changes through time and can be explained temporally. The changes is landform. हर geographical phenomena जो है वो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे हम बात करें तो लैंडफॉर्म्स में, क्लाइमेट में हमेशा चेंज होता रहता है। वेजिटेशन जो है वो चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशन सब बदलते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं रहता। तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट तरीके से ही समझना होगा। मैनी जोग्राफिकल फीचर्स रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इज टर्म्स ऑफ टाइम. आज हमने क्या देखा है, अगर हम जोग्राफिकल फीचर्स को देखें तो एज अ रिज़ल्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट हो सकता है. ये बहुत ही पॉसिबल है दैट वी कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम. आज हमने स्पेस को टाइम्स में और टाइम को स्पेस में कन्वर्ट करके देखा है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट प्लेस ए इज़ 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, और ऑल्टरनेटली इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज़ 2 hours अवे और 17 hours अवे if one travels by plane or if one's travel by fast moving train. देखिए कितना क्लियर एग्जाम्पल है कि हम लोग समय को दूरी से भी नापते हैं, और दूरी से नापने के लिए भी हम डिफ्रेंशिएटिव हैं. अगर हम एक ही जगह को एरोप्लेन की गति से नाप रहे हैं तो वो 2 घंटे की होगी, और सेम ए टू बी प्लेस अगर हम ट्रेन से मूव कर रहे हैं तो उसका दूरी जो है वो बढ़ जाएगा. सो if it is for this reason, time is an integral part of geographic studies as the fourth dimension. Now the next topic is physical geography and natural sciences, which I explained in another video.